میں کتنے سال کام کیا؟ تقریباً 5 برس. تو وہاں کیا سیکھا؟ سیکھنا کیا تھا بھائی, کچھ ہم تو آپ کو وہاں جا کر یہ پتہ چلا کہ جو ہم پیش امام تھے وہ بہت ہی اچھے تھے. یہ ملوں کی جاب جو ہے نا ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں, نہ ہم کر سکتے, نہ ہم اس میں فٹ ہو سکتے ہیں, نہ ہماری کسی کام کی چیز ہے. اصل میں اس وقت جو تنخواہیں دے رہے ہیں نا, کہیں سے انسان پورا نہیں کر سکتا. ظلم ہے میرے حساب سے, زیادتی ہے. وہ نہ مردوں میں شمار ہے نہ زندوں میں شمار ہے. میں تو یہ کہوں گا فضول زیادتی کر رہا ہوں انسانیت کے ساتھ, میں نہیں مانتا. تو جو لوگ نوکری کر رہے ہیں وہ کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ بھائی کاروبار تو اب میرا خیال ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر 80% یا 90% وہ کاروبار نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ صرف 10%. ایک تو مسائل ان کے اپنے گھریلو ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس طرح پا نہیں پاتے, اور ایک یہ ہے کہ کاروبار کے اندر اونچ نیچ آ جاتی ہے بڑی خطرناک قسم کی, اس کی وجہ سے انسان. آپ کے ساتھ بھی تو ہے, آپ کو تو کچھ نہیں ہوا. نہیں ہوا, جب بھی ہوا تو جاب کی طرف بھاگے, کیا کر سکتے. اب جب میں جاب پہ بیٹھا تو بڑی عجیب کہانی ہے کہ میرے گھر میں شاید 1-1.5 لاکھ روپے پڑا ہوا ہوگا. وہ تنخواہ کے ساتھ ساتھ کرتے کرتے جو ہے ایک دن ایسا آیا کہ وہ برابر ہو گئے سال کے اندر شاید, کیونکہ آپ کے خرچے تو بڑھ چکے تھے. خرچے زیادہ تھے اور آمدنی کم تھی, اور آمدنی اتنی محدود ہے ملوں کی. آپ کسی مل میں جائیں دیکھیں تو اللہ معاف کرے, کیا کہہ سکتے ہیں, روزگار دیا ہوا یہی بہت ہے کہہ سکتے ہیں, لیکن بہت بری حالت ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ تو 5, 10, 20 افراد کو اچھی سیلری دیتے ہیں. باقی جو ہے وہ جو خاص طور پہ جو 8 گھنٹے پورا مشین پہ رہتا ہے اس بندے کی تو حالت میں دیکھتا ہوں. تو ہمارے ساتھ بھی جو مزدور ہوتا ہے ٹرک کے ساتھ, اس پہ بھی ہم پریشان ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک دن میں کبھی کبھی 2-2, 2.5 ہزار چھاپتا ہے. ایک ٹرک پہ 3 پھیرے 2 پھیرے لگا لیے, 500-700 روپے اس کی مزدوری ہوتی ہے. اچھے خاصے بنا کے جاتا ہے روز. لیکن جو لیبر ہے وہ بیچاری جو ہے, لیبر کی بات کر رہا ہوں, ٹرک کے ساتھ اگر ہے وہ, لیکن اگر کسی میں کہیں جاب کر رہا ہے اس کی وہی اس وقت شاید 200 روپے ہو, نہیں تو اس وقت ہمارے ہوتے ہوئے تو کچھ یہ بھی نہیں تھا. سن 2000 میں نے شاید 5 میں نوکری وہ کی ہے, ختم کی. وہاں سے کیا سیکھا؟ وہاں سے سب سے اچھی بات جو میں نے سیکھی, بہت سی چیزیں سیکھی. میں تو ناصر یوسف آنر ہیں اس کے, انہوں نے مجھے بھائیوں کی طرح اپنے ساتھ رکھا, بہت کچھ سکھایا ہے. میں کہتا ہوں کہ مل میں جا کر پتہ چلا کہ بھائی اسٹیپس ہوتے ہیں گفتگو کے, طریقہ کار ہوتے ہیں, کس سے مل کے کیا بات کرنی, کس سے کیا نہیں کرنی. تو یہ ساری چیزیں جو ایک پلاننگ کا اور ایک سسٹم کے اعتبار سے چلنے کا جو ہے نا, یہ میں نے پہلی دفعہ زندگی میں مل میں جا کر دیکھی. مینیجر لیول کی گفتگو, سیٹ کے اوپر, لیبر کے اوپر, آفس ورک کے لڑکوں سے بات کرنا, یہ سب چیزیں الگ الگ تھیں. تو وہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور سیکھنے کے ساتھ روزگار جو ہے نا وہ بڑا محدود تھا. اس نے مجھے پھر ستایا, مجھے رہنے نہیں دیا. اور ایک عجیب واقعہ ہو گیا تھا, میری گھر والی مجھ سے کہتی تھی کہ بھائی چپ چاپ بیٹھے رہو مل کے اندر, یہی جاب کرتے رہو. تو لیا جو رقم ملتی ہے تھوڑا اوور ٹائم وغیرہ لگا کے زیادہ پیسے لیا. میں نے کہا چھوڑو یار اوور ٹائم, ساری زندگی میں کیا اوور ٹائم لگاتا رہوں گا. میرا مزاج جو ہے میں کسی کی سنتا نہیں ہوں, اور جب کچھ زیادہ بولے تو پھر, جب میں پیش امام تھا تو بھائی ذکر رحمان صاحب ہوتے تھے, ان کے گھر میں 2 مہینے 3 مہینے بعد میٹنگ ہوتی تھی, تو میری ان سے ٹھیک ٹھاک بحث ہوتی تھی. تو وہ تو تڑاکے والی بات ہے بہت حد تک. تو میں جاتے ہوئے آیت الکرسی اور کیا کہتے ہیں آیت الکرسی, درود شریف اور سورہ اخلاص, یہ چیزیں پڑھتا ہوا جاتا تھا کہ ان سے کوئی غلط بات نہ ہو جائے بس. تو یہ مقصد ہے, آپ اگر سچے ہیں, حق پہ ہیں, صحیح بات کرنے کے عادی ہیں تو آپ رہو, اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے. آپ تخیص کے اندر میں نے بہت کچھ کیا, اور وہ پوری ایک داستان ہے. میں جہاں جہاں میں نے وقت گزارا ہے, میں دیکھتا ہوں کہ ایک پوری تاریخ, ایک واقعہ ہے, ایک پوری کہانی ہے. بڑے واقعات کیے وہاں, بڑے سیاسی مسائل تھے وہ حل کیے. کوئی انٹرسٹنگ اسٹوری سنائی جو تخیص میں ہوئی ہو, کوئی انٹرسٹنگ واقعہ کسی کی پٹائی کر دی ہمارے کو دال روٹی سے ہٹانے کے چکر میں. تو وہ کچرے کا کاروبار کہاں سے شروع ہوا؟ ویسٹیج کچرا. میں نے ایک دفعہ واقعہ ہوا تھا کہ میں ثناء اللہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا, وہ آفس میں پیسے جمع کرا رہا تھا کہ وہ کیا نام ہے اپنے طارق یوسف صاحب وہاں سے گزرے. کیا نا عادل صاحب, وہ مجھے جانتے ہیں محلے کے حساب سے پیش ماں. تو کیا نا عادل صاحب کیسے کھڑے؟ میں نے کہا آپ کا کچرا خریدنے کھڑے. کہ ناراض ہو گئے, عجیب آدمی آپ,
कचरा बोलते हैं और ख़रीदने भी हैं। तो मैंने उनको कहा अगर मैं इंग्लिश में वेस्ट बोल दूँ तो आप बोलेंगे ठीक है। तो वही वाली बात है। लेकिन शुरू कैसे हुआ, आइडिया कैसे आया कचरे का? आइडिया फिर वही बात है, मसाइल की वजह से। नहीं तो नज़र अपॉर्चुनिटी कैसे नज़र आई? हुआ ये कि मुझे उन्होंने जो है एडमिन मैनेजर के साथ साथ मैं वेस्ट का निगरान भी था। वहाँ कुछ चोरी चकारी के मसले मसाइल थे मैनेजरी लेवल के, कोई गाड़ियाँ चोरियाँ हो जाती थी, वहाँ बिक जाती थी, पता भी नहीं चलता था। और जो उन्होंने पहले दिन मीटिंग मेरे साथ की थी वो बड़ी अजीब थी। मैं तो खुद हैरान रह गया था। मुझे कहना भाई मेरे यहाँ से बहुत चोरी होती है, लाखों की चोरी होती है, आपको रोकने के लिए मैंने बिठाया। आप अपने आप को एडमिन मैनेजर ना समझें, बड़ा चौकीदार समझें। मैंने कहा हम तो हाजिर हैं, जैसे आप बोलेंगे वैसे करेंगे। मैं सुबह 8 बजे, मेरे पास बाइक भी नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी, वैगन से जाता था। सुबह 8 बजे मैं फैक्ट्री में पहुंच जाता था, जबकि मेरी टाइमिंग जो है वो 9 बजे की थी। वहाँ मैं 8 बजे वहाँ पहुंच जाता था और रात को मैं निकलता था 10 बजे वहाँ से, 9 से 10 बजे। मेरे दिल में ये था कि जिस काम के लिए इन्होंने मुझे चुना है और चौकीदारी के लिए जो इन्होंने मुझे काम सुपुर्द किया है, ईमानदारी से करूँ, देखूँ कि वो चीज़ें सही हैं कि नहीं हैं। मैंने 1.5-2 साल लगातार सख्त ईमानदारी के साथ बड़े तरीके से किया और मैं बार बार उनसे तकाजा करता रहा, आप मेरी सैलरी थोड़ी बढ़ाएं। यूँ हाथ रखते थे सीने पे, आदिल साहब मैं यहाँ बेफिक्र है 12,000 कर दूँगा, बहुत बढ़ाऊँगा। अभी बढ़ा के नहीं दी उन्होंने, कुछ बातों की हद तक तो बहुत रही, लेकिन करा है कुछ नहीं। उस चीज़ ने मुझे ज़रा दिली तौर पे बड़ा सदमा पहुँचाया। कचरे का ख्याल कैसे आया? वो वही वेस्ट लोग लेने आते थे, अच्छा। लेके जाते थे, उनसे मैं पूछता था इसका पर्पज़ क्या है, करते क्या हो इसका। तो अक्सर तो इधर उधर की कहानियाँ सुनाते थे जो बंदे को पता ही ना चले कि क्या करते हैं। तो 1-2 शरीफ सीधे हमारी तरफ भी आ जाते थे जो हमें बता देते थे भाई इसका ये पर्पज़ है, इस तरह। तो उसके पे एक वाक़या हुआ कि एक दफ़ा एक जंग के कुछ साथी आए, ये लंबी दाढ़ी सफ़ेद, बिल्कुल तबलीगी जमात से उनका ताल्लुक़ अपना, और पता नहीं क्या कुछ बताया वो अल्लाह। तो मुझे कहने लगे आदिल साहब मैं आया हूँ जंग से, बहुत परेशान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, ये जो माल आपका है ना ये बहुत अच्छी जगह पे बिक सकता है और बिकता है। मेरे पास कुछ 15-1 हज़ार रखे हुए थे शायद। मैंने कहा भाई मेरे पास तो ज़्यादा तो है नहीं, एक 15,000 है, उसमें कितना आ सकता है? तो मतलब 15,000 नहीं, आप 3,000 वो 30,000 कर लें। तो जो है मैं आपको इसका एक आइडिया देता हूँ। मैं अच्छा भाई चलो तुम आइडिया दे दो, हम तो वैसे ही नौकरी पे परेशान हैं, पूरा नहीं हो रहा। तो उन्होंने क्या आइडिया ये है कि आपको मैं एक मिल पे लेके जा रहा हूँ, मेरे साथ छुट्टी करने के बाद चले और विज़िट करें, ये माल वहाँ देना है। मैंने कहा अच्छा। मुझे वो ले गए 5-6 बजे के बाद अपने साथ। गुलबाई पे फैक्ट्री थी, 5 स्टार के नाम से मशहूर, खालिद जावेद की फैक्ट्री बड़ी मशहूर है, फ़ौजी कंबल बनाते हैं, उनको बहुत सारे और भी काम है। वहाँ ले गए, उनसे मिलवाया मुझे, कहने लगा भाई ये हैं, ये आपको बेच देंगे एक्रेलिक का, तो ये रेट होंगे। उन्होंने शायद 32 रुपये या 34 रुपये रेट कोट किए पर केजी। उन्होंने राज़ी हो गए इस पर। खरीदा क्या था? 14 रुपये, डबल डबल हो गए, डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो मैं भी बड़ा खुश हुआ, मैंने बोला चलो 3 टन का शायद सौदा किया 14 रुपये के हिसाब से। वहाँ उनको दिया ले जाके, मैं ही एडमिन था, लोग सही जो माल जो भी था दे गए वहाँ। तो उन्होंने किया आधे पैसे 30,000 से कुछ कम जो है उसी वक्त दे दिए, डबल हो गए। तो बाकी क्या ना पर्ची पे लिख के दे दिया 1 हफ्ते बाद ले लेना। मैं बड़ा खुश हूँ, 1 हफ्ता तो कोई बात ही नहीं है। तो जेब में पर्ची डाल के आ गया, मैं अपने उसमें हूँ। 1 हफ्ते बाद मैं गया, वो बाबा तो फिर नज़र ही नहीं आया। तो वो कह रहा है भाई वो तुम्हारा पार्टनर वो बाबा जो है उसने मुझे आगे का सौदा किया हुआ था, वो तो मेरा वेस्ट उठा के जंग चले गए। मैंने कहा अभी तो हम इस तरफ आना चाह रहे हैं, वो तो पहले बंदे ने हमें चक्कर ही दे दिया। खैर जो रकम थी वो तकरीबन थोड़ी बहुत कमी के साथ 5-7 हज़ार के वो वापस आ गए। तो उन्होंने रास्ता खुल गया, वो एक चीज़ पता चल गई। फिर मैं बहुत भागा, जिसको कह रहा है मैं सुबह फजर पढ़ के अतीक आमना ये तारिक रोड से निकलता था और मैं फजर के बाद घर पे नहीं जाता था, चला जाता था और शेरशाह में और जहाँ जहाँ वेस्ट बिकती है उन जगहों को जज करने की कोशिश करता रहता था, कहाँ कहाँ बिकती होगी, कहाँ कहाँ जाता होगा, मिलता रहता था। करते 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 अल्लाह मियाँ ने कुछ अजीब सा एक वाक़या हो गया। शायद सन 2003 में तकीज़ के अंदर बहुत बड़ी आग लग गई, जिसके अंदर रॉ मटेरियल पूरा का पूरा और फिनिश गुड पूरा का पूरा जल गया, ख़त्म हो गया बिल्कुल। तो
करोड़ों का नुकसान हो गया। वो क्या कहते हैं, इंश्योर्ड होता है। तो माल उन्होंने खाली प्लॉट में डाल दिया, बराबर में एक और साथी का प्लॉट था उसमें। तो अल्लाह का करना ये हुआ कि वो ख़रीदने के वो इंश्योरेंस कंपनी का था माल। अब आते थे लोग, जाते थे, हर एक को मैं दिखाया करता था, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, मैं भी हर एक की सुनता रहता। अच्छा, तकीज़ के अंदर मुझे ये पता चले एक्रेलिक क्या चीज़ है, पॉलिस्टर क्या चीज़ है, विस्कोस क्या चीज़ है, कॉटन क्या चीज़ है, इसके अंदर वुल कितना मिला हुआ है, एफेक्स कितना मिला हुआ, बाहर का माल 600 किलो वाला कौन सी चीज़ है, 400 किलो वाला, ये सारी चीज़ें मुझे मालूम था। अब हर आदमी आता है जाता रहा, यार हम ख़रीदेंगे तो यार हमें कुछ बताना, गाइड करना। करते करते एक हाथी की तरह आदमी आया, तो मुझे बोलता, आदिल साहब आपका नाम है? मैंने कहा हाँ। कहना यार आपका नाम मैंने बहुत सुना लोगों से, तो ये माल अब हमने ही ख़रीदा है और कोई और ले नहीं सकता। वो वाकई कुछ होता है कि 22 लाख में हमने माल ख़रीदा है, 5 लाख हमने रिश्वत दी है और 2 लाख का हमारा यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन ख़र्चा है अपने गोदाम में ले जाने का, इस तरह हमें 30 लाख में पड़ेगा। तो बाकी अब तो आपने हमें गाइड करना है कि इसमें विस्कोस क्या चीज़ है, इसमें एक्रेलिक क्या चीज़ है। उसको पता नहीं था। उसको पता कुछ नहीं, वो शिप यार्ड का बंदा था, जहाज़ तोड़ने वाला, गिडानी ने कहा। उसको ये उनके साथ ये क्या कहते हैं, इंश्योरेंस कंपनियों के साथ ये लगे हुए होते हैं, जहाँ जहाँ आग लगी वहाँ का पूरा ले ले, जैसा तैसा है। खैर वो वाक़या अल्लाह ताला ने शायद मेरे लिए एक मदद थी अल्लाह की तरफ से। तो मैं वो आया, उसने मुझे बताया, मैंने कहा मुझे आप क्या करोगे, मैं आपको क्या बोलता हूँ। कहना आप 5 बजे के बाद ओवर टाइम नहीं लगाएं फैक्ट्री में, आप मेरे पास आ जाए, अब मैं मज़दूर लगाऊंगा, आप कैटेगरी करवाएं, जब माल बिकेगा जितना बिकेगा पर किलो में आपको 8 आने दे दिया करूँगा। बहुत अच्छी ऑफ़र थी। खैर लेकिन फिर ईमानदारी करते का, तो मैं चला जाता था 5 बजे उसके पास, तो वो फिर सॉर्ट आउट कराता था सारा माल, में बताता एक्रेलिक ये चीज़ें, विस्कोस ये चीज़ें, फिर ग्राहकों को लेके जाता था। करते कराते मैं उसकी ब्रोकरी में शायद 2.5 लाख रुपए मैंने बना लिए वहाँ, उसका सारा माल बिकवा दिया। आखिर के माल मैंने खुद ख़रीदे बहुत सारे। 8 आने आपको उसने दिए या आपने अपने उधर से भी खासा माल? नहीं दिए, कुछ खास नहीं। फिर वो 4 आने पे आ गया, फिर 10 पैसे के चक्कर में पड़ गया, फिर अजीब अजीब कहानी करता रहा। मैंने कहा वो तो तुम्हारा अपना फेयर है, जो मर्जी कर लो, लेकिन उससे कोई हमारा गलत नहीं। कि मैं काम सीख गया, मैं समझ गया बेचना कैसे है, ये चीज़ क्या है, कहाँ जाती है, किस तरह, कौन से गाहक खरीदार है। पंजाब के ग्राहकों से ज़्यादा रब्ता हो गया। ठीक है जी, इस तरह हुआ क्या हुआ।